This conference will now be recorded. चारू जी, पहले तो आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं, और उसके बाद इंट्रोडक्शन कराइए। Am I audible now? Yes, Charu, you are. Good morning. Good morning, Priya ma'am. Good morning. Very good morning. Good morning, everyone in the meeting. So we have Priya Sharma here with us. What can I say? She is for managing service deliveries for her customers, and she is taking a webinar, in which we are going to train you all for a soft skill, right? And she's also a service delivery manager at Amdocs. So she has 18 plus years of experience in managing customers and stakeholders. And yeah, up to you, ma'am. Thank you so much, Charu. बाकी सब लोग अगर आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी हम लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे and it will give you also a little bit of more I would say insights of the things. Priyanka, it's good. I saw you for once. Vivek, okay. Hi. Hello, ma'am. I'm sorry. Hi. Why are I'm not sure what's your full name is? Yashi Rastogi. Yashu Rastogi. Hello, Yashu. Hi, Priyanka. Hello, Nidhi. Good to see Hello, you. ma'am. Good. Hi, Hello. ma'am. Hi. You can call me Priya. It's fine. It's perfectly fine. Okay. I think let's get it started. We are already at 11 now. And for others, a request to others, if you can switch on your camera, it's wonderful. But if you don't feel comfortable, then also it's perfectly fine. No worries. I'll start sharing my screen. And hi, Vivek. Ma'am, this is Naina. Actually, laptop You're मेरे using husband का है, so it will be Goila. Okay, I also couldn't relate the name with the face, but yeah. Hi Nana. Thanks for opening your camera. Let me Thank start you, sharing ma'am. my screen and we'll get going then. Sure. I'll not be able to see you guys, but you will be able to see me because I'm sharing my screen. So as soon as if there is any question in between, of course I will be pausing in between. But कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बीच में आप लोग just raise your hand and give it a shout. I'll be happy to answer your question. I'm not saying I'm expert in this area, but whatever I have learned from my experience, I'll try to help you out with that. Okay? Okay, ma'am. You can see my screen, right? Yes, ma'am. uh, my introduction has already been given by Charu, but just onto that, I would like to add on my personal my hobbies, and that's very important for all of us to have some of the hobbies, so that we keep going, we keep on going, and we are happy on a day-to-day basis. So mine includes traveling and keeping myself fit. So I do work out on a daily basis. So that's all from my end, other than what Charu has already put in forward for me. एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सभी लोगों से, बिल्कुल आप एकदम कंफर्टेबल रहिए और जो भी सवाल पूछने हो आप पूछ सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है, भाभी दोनों में पारंगत है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से मैं भी कोशिश करती हूँ थोड़ा हिंदी में बीच में बोलने की। तो thank you Anurag for pitching in. I'll keep that also in my mind.
ये ट्रेनिंग वैसे सॉफ्ट स्किल्स के लिए है, पर सॉफ्ट स्किल्स सारे इतने छोटे टाइम में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आई हैव पिक्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। बट स्टिल आई आई थॉट दैट इट्स गुड आप लोगों को बताने के लिए कि क्या सॉफ्ट स्किल्स हम लोगों को डेली में चाहिए होती हैं डेली। You know what, it's not only in industry, in day to day life also these soft skills are important to interact with anybody. So we'll just see what are the important soft skills and then we will focus on हमारा जो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, एंड हम लोग इसको एक वे नहीं करने, वन वे नहीं करने वाले हैं कि मैं बोलूंगी और आप लोग सुनोगे। You also can share your thoughts, right? What do you feel about it? Any language. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, सो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो हैं, वन, एक कम्युनिकेशन विच इज द की, बिकॉज दिस ये आपको सबके साथ एक दूसरे के साथ लेके आता है। दूसरा है सेल्फ मोटिवेशन, आप अपने आप को कहाँ रखते हो, खुद आप कितना मोटिवेटेड हो, कितना आप लोगों को देखकर इंस्पायर होते हो, दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड इज द लीडरशिप स्किल्स। I will give a pause over here before moving further. अभी हम लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सभी लोग एज ए एयरटेल स्टोर मैनेजर ज्वाइन कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. I'll just go to the मैंने एयरटेल की वेबसाइट से आप लोगों का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक वो निकाला था स्नैपशॉट कि आप लोग किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एंड फॉर यू लीडरशिप विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। So मैं वो आपको एक बार दिखाती हूँ। I'm sure you would have already seen it, but I will just go to that last slide once. Where did it go? Let's move it faster. Yeah. ये आप लोगों के सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेसिकली आप लोगों की जो डे टू डे होंगी। डेवलप स्टोर स्ट्रैटेजीज टू एक्सपांड स्टोर ट्रैफिक एंड ऑप्टिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। Ensure a consistent quality store experience for customers. Customer needs are met, complaints are resolved, and service is quick and efficient. Drive sales of various Airtel plans, plan upgrades, products, My Airtel app, Wink, Airtel TV, etc. Maintain store staff job results by coaching, counseling, disciplining, planning, monitoring and appraising job results. So specifically ये वाला जो रोल है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इधर आपकी लीडरशिप स्किल्स यूज होंगी। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का से आपका काफी काम चल जाएगा। मेंटेनिंग इन्वेंटरी लेवल ऑफ एयरटेल एसेट्स, this is something जो normally key, I would say key role है, which is your professional qualification also. I'm sure you will be able to do it with your professional skills only. Technical skills, I would say. Ensure adherence to predefined Airtel SOPs to run the store operations. That is also something related to your technical skill sets. Let's see the skill sets required now. Communication skills and interpersonal skills. Ability to analyze data and derive insights. Customer centricity while taking all decision. That is the most important, since आप लोगों का customer facing सबसे ज़्यादा होगा. Ability to drive large teams, since आप मैनेजर रहोगे स्टोर के, आपके पास टीम्स होंगी, जो भी सबऑर्डिनेट्स आपके होंगे उन लोगों का काम, उन लोगों बेसिकली वो लोग सक्सेस करेंगे तभी आप सक्सेस करोगे। ability to monitor store transactions, that's something which will come as your technical skills. Digital savvy, ability to maintain the ability to maintain a digital oops, sorry, I think I just closed it. So ये आप लोगों के डे टू डे बेसिस की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो माई स्क्रीन गॉट stopped. I'm just sharing it now again. ये आप लोगों के रोजमर्रा के जो काम रहेंगे, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रहेंगी आपकी।
इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट करने के लिए आप लोगों का एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, उनके क्वेश्चंस का आप कैसे आंसर करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Any question, any thoughts till now from anybody? No, ma'am. No thoughts even? No. Actually, ma'am, I have one query. मैम मैंने Yes. कभी ऐसे जॉब नहीं की है, मतलब ये इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली, तो थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी एज अ स्टोर मैनेजर। बिल्कुल कर पाओगे मानसी। I'll tell you why. अगर आपको ये रोल मिला है, आपको ऐसे ही नहीं मिला है। You hold some caliber. आपके अंदर कैलिबर है। That's Mansi's question, right, Mansi? यस मैम। आपके अंदर कैलिबर है तभी आपको ये रोल मिला है। एक बात समझना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंड एयरटेल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एमडॉक्स उसका इंडिया का। एयरटेल इज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। वो ऐसे ही किसी को जॉब नहीं देता है। उन्होंने आपके अंदर कुछ देखा होगा तभी आपको ये जॉब मिला है। आप कर पाओगे 200%। आई कैन गारंटी यू। जस्ट हैव सम कॉन्फिडेंस इन यू एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू मैम। एनी थॉट्स टिल नाउ अदर देन मानसी? नो मैम, बस यही था। ठीक है, चलिए एक्चुअली अभी आई एम हम लोग वर्किंग हाँ इन अकाउंट डिपार्टमेंट। ओके। तो सी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंट्स वाला भी है इसमें। maintaining the store responsibilities, maintaining the data, maintaining the inventory. A lot of things are from there also. You'll be able to do it, Mansi. I can assure you. Just stay I, positive. थैंक यू। Priya, I have one question from some girls asking me on private chat. So they're asking me कि they are not very English savvy. हिंदी में ज़्यादा comfortable हैं वो. तो हाँ क्या वो कर हाँ पाएंगे जी। ये? देखिए ये स्टोर मैनेजर की रोल कहाँ पर है चारू? दिस कानपुर के आसपास के एरिया में, राइट? Right. कस्टमर कौन आता है Yes. आपका वहां पर? आपके कस्टमर्स जो आएंगे वहां पर वो भी वहीं के हैं, राइट? ये अगर मैं ऐसे ही बताती हूँ, अगर दिल्ली एनसीआर में होता या इंडिया से बाहर होता तो आपको इंटरनेशनल कस्टमर्स मिलते, बाहर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता। पर वहां पर वही लोग आते हैं, हम जैसे ही तो लोग हैं यार, हम लोग भी तो हिंदी में ही बात करते हैं रोजमर्रा में। किसी दुकान में हम लोग अगर जाते हैं, मतलब मैं एक वैसा एग्जांपल दे रही हूँ, पर स्टोर, एयरटेल स्टोर, कोई और कहीं भी जाते हैं, हम लोग नॉर्मली किस में बात करते हैं? आप लोग किस में बात करते हो? हिंदी में ही बात करते हो। आपके कस्टमर्स भी जो आएंगे वो हिंदी में बात करेंगे, एंड आपके सबॉर्डिनेट्स भी जो रहेंगे वो भी आपकी हिंदी में ही बात करेंगे मेजरली। बट इट्स गुड टू लर्न ऑल्सो अनदर लैंग्वेज, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कुछ नहीं है। इट विल नॉट इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू परफॉर्म। आप काम वैसे ही कर पाओगे, क्योंकि लोग, कैलिबर इज डिफरेंट। कैलिबर इज लाइक आपकी क्षमता काम करने की, राइट? उसका कम्युनिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन आना चाहिए, आप बात करना आना चाहिए आपको, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट चीज वो है। अभी हम लोग जाएंगे बाय द वे आगे, अभी हम लोग गए नहीं, एक्चुअली साइज हमने देखी ही नहीं है, इंपॉर्टेंट आइटम्स ही नहीं देखे हैं। एक चीज होनी चाहिए कि जैसे मैं बात कर रही हूँ और निधि बात कर रही है, अगर मैं बोल रही हूँ पंजाबी में और निधि बोल रही है तेलुगु में, और हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही है, दोनों में से कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है, राइट? देयर इज नो पॉइंट। मैं हिंदी में बोल रही हूँ पर निधि को हिंदी नहीं आती है, तो भी कोई पॉइंट नहीं है। तो कम्युनिकेशन कॉमन लैंग्वेज में होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। आपके कस्टमर्स जो वहां पर आएंगे उनकी भी आपकी और उनकी लैंग्वेज कॉमन है। एंड सिर्फ लैंग्वेज कॉमन नहीं है, आप लोगों का एक्सेंट भी कॉमन है, क्योंकि आप लोग भी उसी एरिया से हो। सो एक्सेंट, I hope डायलेक्ट, यू नो। I hope कि सबके क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा इससे.
Right, ma'am. You can go further, ma'am. Thank you so much. Okay, you're welcome. Okay, let's move ahead now with our, so then the leadership, we talked about it, responsibility, टीम वर्क, क्योंकि टीम रहेगा, टीम के साथ काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व कैसे करना है। जरूरी नहीं है आपके पास सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आप उसके साथ उसको सब लोगों के साथ बैठ के उसके बारे में बात करके आप उसका सोल्यूशन साथ में निकाल सकते हो। डिसाइसिवनेस, इट्स द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, कि आप डिसाइड कर सको ये काम करना है, ऐसे करना है, क्योंकि आप मैनेजर हो, स्टोर के मैनेजर हो, ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी टीम आपको देखेगी कि हाँ मैडम मैडम क्या डिसाइड करती है, क्योंकि योर डिसीजंस विल इम्पैक्ट योर सबऑर्डिनेट्स आल्सो। सो कामली कामली डिसीजंस लेने हैं और अच्छे से सोच समझ के। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट, कुछ टाइम ऐसे आएंगे जब बहुत सारा प्रेशर होगा, दोनों साइड में से हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का कस्टमर फेसिंग भी रहेगा एंड द अदर साइड ऑफ इट आल्सो, जहां पर आप एयरटेल के बाकी लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करोगे, इन्वेंट्री के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब काम बहुत ज्यादा हो तो उस टाइम पे कामली उस प्रेशर के अंडर काम करना, और साथ में अपने टाइम को मैनेज करना, कि अगर आपके पास लेट्स से, मुझे मालूम नहीं आपका कितने आवर्स का जॉब रहेगा, लेट्स से नॉर्मली 9 घंटे का जॉब रहता है, 9 घंटे में हाउ यू डिवाइड योर वर्क, किस किस टाइम पे आपका क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स से कि एक पर्टिकुलर टाइम है जब आपके कस्टमर्स आएंगे, दैट टाइम ट्राई टू डिवोट इट फॉर कस्टमर्स। जिस टाइम पे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, ट्राई टू मेंटेन द स्टोर रिपोजिटरी। सो यू नीड टू डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्केड्यूल, कि पूरा दिन कैसा जाता है, कहाँ पर आपको कब टाइम मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। आज आज पर्टिकुलरली एग्जाम्पल यही लेते हैं, आज की तारीख में लेट्स से आज सैटरडे है, सैटरडे को बहुत सारे लोग आते हैं, सो मे बी यू अडेप्ट योर वर्क, आप अपना काम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो, कि आज आप कस्टमर्स की हैंडलिंग ज्यादा करो और जो बाकी आपका पेपर वर्क है वो आप कल के लिए करो या किसी ऑफ पीक आवर्स में करो। नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आई थिंक दैट ये आपके लिए उतना ज्यादा अभी इनिशियली इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ये बाद में जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस होगे तब आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आई कैन टेल यू होता क्या है ये, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स ओवर हियर इन दिस वेबिनार। नेगोशिएशन स्किल्स इज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं पहले। जैसे आपकी टीम में 4 लोग हैं, अब दोनों में आपस में झगड़ा है, तो आप उन दोनों को सेम पेस पे कैसे लाओगे, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सारी टीम काम करेगी, टीम वर्क के लिए दैट इज इम्पोर्टेंट, जब सारी टीम काम करेगी और सारी टीम एक साथ काम करेगी, तभी आपकी स्टोर जो है वो फ्लरिश करेगी। अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स सारे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको रोजमर्रा में काम आएंगी, जो आपको हेल्प करेंगी। हम लोग फोकस करेंगे कम्युनिकेशन पर। अगर जो अभी तक मैंने बात किया उसमें से किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ। No, ma'am, all clear. वेरी नाइस, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स गो। नाउ वी आर गोइंग इनटू द एजेंडा ऑफ व्हाट ऑल वी विल बी कवरिंग, क्या हम लोग करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। शुरू करेंगे सबसे पहले, एंड शुरू में देखेंगे क्या क्या हम लोग बात करते हैं, थोड़ा हम लोग चिट चैट करेंगे वहां पर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो हम बात करें वो टू द पॉइंट हो, वो कैसे उसके क्या वो कैसे करते हैं। देन आप अपने जगह पर जहाँ पे आप काम करते हो, वर्क प्लेस पर, आप कैसे कम्युनिकेट करो अपने एम्प्लॉयज के साथ, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनके साथ। कुछ हम लोग बातें करेंगे कि जो चीजें आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने स्टोर में करो,
कम्युनिकेशन में कुछ चीजें आप जो आपको जरूरी करनी चाहिए और जो चीजें आपको बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्चुअली, एंड नाउ इज योर टर्न. सो देयर आर 3 क्वेश्चंस. क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के अकॉर्डिंग? हम लोगों ने कुछ कुछ थोड़ा सा बात भी कर लिया इसके बारे में. क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं? हेलो. हाँ नैना. Yes, हेलो. ma'am. Communication skills is like कि हम सामने वाले को अपनी बात कैसे समझा सकते हैं और उसकी बात कैसे समझ सकते हैं. That is communication skill. और परफेक्ट. क्यों ओके. है, क्यों जरूरी है, वाई कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमको ये पता, मतलब हम कैसे हैंडल करेंगे सामने वाले की कंडीशन को, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, क्योंकि सबका माइंड प्रोसेस अलग होता है सोचने और समझने का, उस चीज को एक्सेप्ट करने का. सो कम्युनिकेशन एक मतलब बेस्ट वे है सामने वाले को, और मतलब अपनी बात हम समझा सके. दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल. परफेक्ट. वेरी गुड. यस, आप सही बोल रहे हो. और कोई? निधि, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम. मैम, कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होगी कि सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर होना पड़ेगा. जब तक आप कम्युनिकेशन में एक अच्छा सुनोगे नहीं, तो आप सामने वाले से अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे. और आई बिल्कुल थिंक सही. ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा कि आप सबसे अच्छा सुने और इसके बाद आप कम्युनिकेट करें, देन रिएक्ट करें. नाइस. नाइस. मानसी, आप कुछ कहना चाहोगे? यस मैम, वही जो इन लोगों ने बताया, ये 2 वे प्रोसेस होता है. जब तक हम सामने वाले की बात समझ नहीं पाएंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, उनको कन्वे नहीं कर पाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं एक्चुअली. यस यशु, आप कुछ कह रहे हो? हेलो. हाँ जी यशु. Yes, ma'am. Good communication skills are essential to allow others and yourself to understand information more accurately and quickly. So यही बिल्कुल बेटर सही. रहता है कि अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है और आप क्विकली रेस्पॉन्स नहीं करते हो, सो वो चीज आप में होनी चाहिए. सही है. बिल्कुल सही. कोई और? अनीता, तान्या. ओके. मैम, कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अपनी मायने रखती है कि अगर हम जैसे आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज आपसे नहीं मैच कर रही है, तो ना आपको सुनने में अच्छा लगेगा ना मुझे बोलने में. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही निधि. पूजा, सुमन, श्वेता. ओके. आई थिंक लेट्स गेट गोइंग. आप लोगों ने मेजरली सबने बता ही दिया. कुल मिला के अगर सब चीज़ों को कंबाइन किया जाए तो यू आर राइट. कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, अपनी अपनी बात समझाने के लिए, दूसरे की बात समझने के लिए भी साथ में, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कम्युनिकेशन वन वे नहीं है. वन वे इज अ लेक्चर, टू वे इज अ कम्युनिकेशन. आप भी कहो, सामने वाले की भी आपको समझ में आए और आप अपनी बात भी समझाओ. इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे रीजंस हैं इंपॉर्टेंट होने के लिए. एंड कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान से नहीं, भाषा सिर्फ बोलने से नहीं, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है. यू कैन कम्युनिकेट यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज, जैसे निधि आपने बोला. योर विजुअल, योर आईज ऑल्सो स्पीक्स. सो अगर आप किसी से बात कर रहे हो एंड यू आर स्माइलिंग बट योर आईज आर एंग्री, वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग कम्युनिकेशन है, राइट? सो
Communication skills are important and very important. One is, this is a two-way communication. दोनों तरफ से आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए, और साथ में आपको दूसरे की बात सुन के समझना भी इम्पोर्टेंट है। जरूरी इसलिए है, जरूरी का हम लोग खैर अभी आगे जाएंगे वैसे, when we will talk about the effective communication, you will understand why this is really important. I think let's get going to the next slide and then we'll see. Effective communication. Effective communication क्या होता है वो लोग तो हम लोग बात कर चुके हैं काफी कुछ, लेकिन वो है, उससे होता क्या है? सबसे पहला important, it will help you in problem solving. एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल लेके एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, ठीक है? क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ कि निधि, सॉरी हाँ निधि, बिकॉज आई कैन सी यू ओनली, इसलिए मैं तुम्हारा नाम ज्यादा ले रही हूँ, आई एम सॉरी। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ निधि कि मैं आपके स्टोर में आई हूँ, एंड मैडम मैंने कल आपसे सिम खरीदा और मेरा फोन नहीं मेरे फोन में मैंने सिम डाला पर मैं फोन से कॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये मैंने आपको एक अपनी प्रॉब्लम दे दी। अब आप क्या करोगे निधि या कोई भी? हाँ, मैं रियल एग्जांपल लेना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए रोजमर्रा में आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी उस तरह की। अब आप मुझे क्या कहोगे एज ए कस्टमर? आप मुझे से किस तरह बात करोगे सो दैट मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, मुझे बुरा भी ना लगे, एंड मुझे ये भी लगे कि हाँ मैं स्टोर पे गई, किसी ने मेरी बात सुनी और कोई मेरे साथ मेरा काम कर रहा है। फर्स्टली मैम हम कस्टमर, यस, फर्स्टली हम कस्टमर ने जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग से जज करने से पहले उसको समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। देन हम अपना काम करेंगे, जैसे हमको चेक करना है कि उसे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, फिर हम उसको समझाएंगे इस तरीके से कि वो खुद समझ पाए। ताकि हम अपनी लैंग्वेज में नहीं समझाएंगे, हम इस लैंग्वेज में समझाएंगे जो उसको समझ में आ रही हो। उसका बिहेवियर कैसा है, अगर वो बहुत गुस्से वाला है तो उसको बहुत कामली समझाना पड़ेगा, वो बहुत पोलाइट है तो ओके हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको समझाना। बट इनकेस अगर उसका नेचर थोड़ा सा एंग्री वाला है तो हमें उसको उसके एग्रेसिव है, हिसाब से अच्छा, समझाना, हाँ एग्रेसिव है तो हमको उसके हिसाब से समझाना पड़ेगा। एक तो काम ये, करते हैं, यस मैम, एक काम करते हैं, आप अपना कैमरा ऑन करोगे? नैना, कर सकते यस हो? मैम, हाँ हाँ, श्योर श्योर, मैं रोल प्ले करती हूँ। आई नो थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर मैं रोल प्ले करती हूँ। मैं कस्टमर बनती हूँ आपकी, ठीक है? ओके और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से मुझे कन्विंस करना कि आप मेरी प्रॉब्लम का ख्याल रखोगे, ठीक है? और मैं पहले तो मैं पोलाइट कस्टमर ही बन जाती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि पोलाइट कस्टमर को हैंडल करना थोड़ा आसान है, इजी ठीक है? होता है, ऐसा मुझे लगता है ठीक है, मे बी। तो देखते हैं पोलाइट कस्टमर कितनी आसान से आप हैंडल करते हो। आई एम श्योर यू ओके विल बी एबल टू डू इट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नैना, हेलो मैडम नैना, कल मैं आपके यहाँ आई थी, मैंने ये सिम लिया, आपने मुझे बोला था 2 घंटे में हो जाएगा चालू। अभी कितना 24 घंटे हो गया, अभी तक तो ये चालू नहीं हुआ, मैं क्या करूं? मेरा फर्स्ट सारा हेलो, बिजनेस बंद बैठा है इसके लिए। हेलो मैम, लेट मी चेक फर्स्ट कि क्या प्रॉब्लम और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे अपना फोन दिखाइए, देन ओके, देन आई विल चेक योर सिम जो मैंने आपको आपने जो परचेज किया है। सेकेंडली हम उस सिम को अपने फोन में लगा के चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, क्योंकि समटाइम्स सिम में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहले हम अपनी साइड से प्रॉब्लम चेक करेंगे कि हमारी साइड से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देन हम मैम सामने आपके फोन में सिम को लगा के चेक करते हैं। देन चेक करने पे हम ये देखेंगे कि कितना नेटवर्क है, कितनी देर में आना चाहिए। देन हम फिर कस्टमर केयर पे पता करेंगे, जो टेक्निकल टीम है हमारी, जो ये सारा सिम हैंडलिंग देख रही है, जो सिम को कनेक्ट करने का काम करती है, हम उसको चेक कराएंगे।
देन हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो कब तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, बाकी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि देखते रहना और मुझे बताना कि क्या यहाँ पर और बेटर हो सकता है, ठीक है? मैं कस्टमर हूँ, मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि कस्टमर कैसे भी बात कर सकता है, उसकी मर्जी है, राइट? फ्रॉम दी एग्जैक्टली। फ्रॉम दी अदर साइड। नैना, मेरा फोन ठीक था भाई, कल तक इसमें मेरा दूसरा सिम चल रहा है, आप ही के सिम में प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? और मैं ओके मैम, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आई चेक दैट कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, देन मैं आपको तो बताती हूँ। देन मैम हम्म, एक्चुअली सिम हैंडलिंग में कोई काम नहीं किया है मुझे, तो आई इट्स डोंट नो ओके, कि इस इट्स ओके, इट्स पर्टिकुलर ओके, चीज को यू डोंट कैसे। नीड टू, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं नैना, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पर, इट्स जस्ट कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी तो मेरे को मैम मेरी हम्म, साइड से, ओके सॉरी मैम, यस हाँ मैम हाँ, आप नहीं नहीं, बोलिए। बोलिए बोलिए, हाँ मेरी साइड से बोलिए बोलिए, मैम, आप बोलिए। हाँ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी साइड से पहले मैं मतलब मैंने कोई सिम को बेचा है तो मैं पहले खुद की साइड से सारी प्रॉब्लम्स ठीक करूंगी कि हो सकता है मेरे एंड पे कोई दिक्कत आ रही हो। सेकेंडली जब मेरे एंड से सब ओके है, देन मे बी सामने वाले के कस्टमर के एंड से कोई दिक्कत आ रही है, उसके फोन में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सिम स्लॉट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो ही चीजें हैं जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी यहाँ पर किसी को कुछ कहना, अभी इतना कॉन्वर्सेशन हम लोगों ने जो किया, कोई किसी को लगता है कि कुछ इस कॉन्वर्सेशन में अलग तरीके से हम लोग बात कर सकते, मतलब हम, मतलब मैं नहीं, हाँ मैं कस्टमर हूँ, मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि कस्टमर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप थोड़ा उसको काम कर सकते हो, वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे काम करोगे, राइट? कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी तरह कुछ और ऐड किया जा सकता था या कुछ चेंज किया जा सकता था जिससे थोड़ा और जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती, या कस्टमर, अभी तो हम लोगों ने खैर पूरा कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं किया था, बट स्टिल। मैम मैं बताऊं, जैसे मैं ऑटोमोबाइल में हम्म मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर में ही हूँ। तो जैसे हमारे हम्म पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनकी गाड़ी में टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या उनको पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कस्टमर से अपोलोजाइज करना चाहिए कि हाँ वो कल हमसे सिम ले गए हैं और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको पहले आप, जैसे मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपोलोजाइज करके उनको कुछ रिप्लेसमेंट ऑफर कर सकते हैं, अच्छे से बिठा के जो भी हमारी टीम है, ठीक है, उनसे हम बात करा सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सिम पहले चेक कराते हैं कि हमारे एंड से प्रॉब्लम तो नहीं थी, सिम में कोई प्रॉब्लम हो, उसको चेक कराते हैं। टेक्निकल जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक दूसरा फोन लेके वो भी चेक कर सकते हैं कि उनके फोन में तो प्रॉब्लम नहीं थी, कि ऐसा कुछ एक्टिवेट नहीं हो पाया। और आई थिंक सिम इतना बड़ा इशू वहाँ पे नहीं होगा, हम उनको दूसरा भी ऑफर कर सकते हैं अगर उस सिम में होता है, तो जो क्विकली डिसीजन लेना है कि ठीक है मैम, हम आपको ये सिम जो है बदल के देते देते हैं कि आपका कोई काम हैम्पर ना करे तब तक के लिए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही निधि। सबसे पहली बात, डिफरेंट लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कस्टमर का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहला अपोलोजाइज, आस्क द राइट क्वेश्चन। अभी Nana, I mean, it's not to corner Nana, by the way. Nana played a very good role, and thanks a lot, Nana, for that. Just एग्जाम्पल्स लेने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास, जैसे निधि है, निधि का कुछ पहले ही प्रायर एक्सपीरियंस है किसी और एरिया में, यहाँ पर बाकी लोग हैं, किसी का कुछ एक्सपीरियंस होगा, किसी का कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, सब तरह के लोग हैं। तो इसलिए एक कंबाइन यस करके बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, इट्स परफेक्ट, अपोलोजाइज, लिसन टू द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज वंस यू लिसन, सबसे पहले तो जो आपका कस्टमर है उसको थोड़ा वो काम हो जाएगा, हाँ एटलीस्ट देयर इज समबडी जो मुझे सुन रहा है, ठीक? सेकंड, आस्क क्वेश्चन वन बाय वन। नैना, आई लॉस्ट यू, बीच में मैं खो गई, आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे नहीं मालूम मैं आपको क्या आंसर दूं और मैं आपसे आगे क्या पूछूं, राइट? कुछ कस्टमर सीधे भी होंगे, बहुत सीधे होंगे, जो कहेंगे छोड़ो मैडम, तो समझ नहीं आ रहा, मैडम इतने सारे सवाल पूछ रही है, मैं कहीं और जाके कोई और किसी और कंपनी का ले लेता हूँ सिम, वोडाफोन के पास चला जाता। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको जज नहीं कर रही हूँ, आप ये बात समझना, एंड हाँ, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट।
सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है. वन बाय वन सबसे पहले प्रॉपरली लिसन एंड आस्क राइट क्वेश्चन धीरे धीरे, वन बाय वन, क्लियर एंड कंसाइज. सब हिंदी, यू नो व्हाट, हिंदी भी काफी लोग बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. जो लोग देहात के लोग होते हैं उनके लिए हिंदी समझना भी उनको टाइम लगता है. और कुछ लोग हिंदी बहुत जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं. मुझे भी, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं मुझे भी नहीं समझ में आती. आई मीन, आप लोगों ने देखा होगा मैं थोड़ा धीरे आराम से बोल रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही. सो दैट बीच बीच में पॉज देने का, रोकना, ताकि सामने वाला आपकी बात सुने. और पॉज इसलिए भी, सुनने के बाद अगर उसे कुछ कहना है तो उसको वो मौका मिले, उसको वो गैप्स नजर आए जब वो कुछ बोल पाए. Yes, राइट ma'am. Right. राइट. Okay, let's go back. And thanks a lot, Nana and Nidhi, for your inputs. Then is a strong decision making. Decision आप तभी make कर पाओगे जब आप interact करोगे, proper right questions पूछोगे, right problem आपको पता होगी. Then only you will be able to take strong decisions. मोर प्रोडक्टिविटी, मुझे लगता नहीं है इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत है. आपका प्रॉब्लम टाइम से सॉल्व होगा, आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, आपका काम ज्यादा होगा, काम जल्दी होगा, अच्छे से होगा. और जल्दी जल्दी से ज्यादा अच्छा इज इम्पोर्टेंट. देन कंसिस्टेंसी रहेगी. कंसिस्टेंसी, एक मिनट, मैं कंसिस्टेंसी की हिंदी बताती हूँ. इट्स लाइक, निरंतरता. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यस, निरंतर रहेगा. थैंक यू यश. वेलकम मैम. आपका बेटर कंट्रोल रहेगा. एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू आर टॉकिंग, आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे होंगे. और लोग मतलब यहाँ पर दोनों लोग इंपॉर्टेंट. तीन, एक्चुअली आप लोगों के तीन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं. स्टेक होल्डर्स इज लाइक जिनके साथ आप बात करते हो. पहला कस्टमर, दूसरा आपके सबऑर्डिनेट्स, तीसरा अदर स्टाफ, द बैक ऑफिस स्टाफ, जो आप जिनके लिए, जैसे अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आई तो आप प्रॉब्लम रेस करोगे. आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे जो एयरटेल की टेक्निकल टीम है, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट. तो मेजरली आपके ये तीन स्टेक होल्डर्स हैं. इन तीन स्टेक होल्डर्स में अलग अलग वैरायटी हो सकती है, पर मोटा मोटा ये रहेगा आपके पास. ऑफ कोर्स इसके अलावा आपका, क्योंकि आप स्टोर मैनेजर रहोगे, तो शायद आपके हाउस कीपिंग स्टाफ और अलग वेंडर्स जो आपके यहाँ आते होंगे उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन रहेगा. इन सब लोगों के साथ अगर आप कामली, पोलाइटली, लुक, पोलाइट का मतलब is not like, polite is a different word. Polite का मतलब ये नहीं है कि you have to lose your self respect and कोई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है उसकी बात मानना. Politely means अपनी बात सही से बताना और अपनी बात समझाना भी when you are right, दूसरे की समझना भी when the person is right. Politely, concisely when you will talk, आप एक अच्छे बिजनेस रिलेशन जो है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मेंटेन करोगे. एंड आप तभी परफॉर्म कर पाओगे, आपकी टीम तभी परफॉर्म कर, आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपकी टीम परफॉर्म करेगी. और वो तभी परफॉर्म करेगी जब आप उनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करोगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अकेला इस दुनिया में कुछ नहीं होता है. वन मैन आर्मी, लोग कहते हैं कि वन मैन आर्मी है, पर ट्रस्ट मी, वन मैन आर्मी नहीं हो पाती है, नहीं होती है. इन नॉर्मल, हम सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, सोशल एनिमल हैं, तो हम लोग सबके साथ ही चल के रहते हैं, तभी हम लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं. एडवांस प्रोफेशनल इमेज, ये मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ एडवांस प्रोफेशनल इमेज का. बेटर रिस्पांस फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स. आई थिंक ये हम लोग इसके बारे में बात कर ही चुके हैं. अच्छे से बात करोगे तो सब लोगों के साथ प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा, कंसाइज रिस्पांस मिलेगा, राइट रिस्पांस मिलेगा. एडवांस प्रोफेशनल इमेज, स्टोर का एग्जांपल ले लेते हैं. आपकी दो स्टोर्स हैं, एक आपकी स्टोर है और एक और किसी की स्टोर है, थोड़े दूर पर, थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है. अब एरिया वाइज ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान, अगर मैं इस एरिया में रहती हूँ तो मैं एक ही स्टोर पर जा सकती हूँ, मैं दूसरे पर नहीं जा सकती हूँ, ऐसा मुझे कोई मना नहीं करता है. लेकिन मैं एज ए कस्टमर चूज करूंगी उस स्टोर में जाना जहां पर मुझे बेटर सर्विसेज मिलेंगी, जहां का स्टाफ मुझे ज्यादा पसंद आएगा, राइट, जो मेरी प्रॉब्लम्स
आराम से सुनेगा और सॉल्व करेगा, या सॉल्व करने का आश्वासन तो देगा, राइट? तो आप ये आपकी प्रोफेशनल इमेज है। योर स्टोर्स प्रोफेशनल इमेज इज योर प्रोफेशनल इमेज, राइट? एंड वो आपकी प्रॉपर पोलाइट एंड राइट कम्युनिकेशन से इफेक्टिवली कम्युनिकेट आप करोगे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आप अच्छे से बना सकते हो। Now I'll give a pause here and I really want to hear your thoughts. कोई और रोल प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, एंड कोई क्वेश्चंस हों अभी तक जितना भी हमने बात किया है तो बताइए। मैम आई हैव वन क्वेश्चन फॉर देम कि कोई आके अगर बदतमीजी करे आपके साथ, तो कई टाइप के लोग होते हैं, कई पोलाइट भी होते हैं लेकिन कई बदतमीज भी होते हैं। घर से लड़के आए होते हैं, मूड खराब होता है, वो दूसरों पे अपना गुस्सा निकालते हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? एक काम करते हैं चारू, एक्चुअली एक रोल प्ले करते हैं। टाइम हमारे पास अभी है, राइट? 20 मिनट है हमारे पास एंड वी हैव 2 मोर स्लाइड्स टू कवर। बहुत ज्यादा कवर स्लाइड से ज्यादा आई थिंक अगर हम लोग इंटरेक्ट करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। ऑनेस्टली मुझे कभी ज्यादा बदतमीज लोग अभी तक मिले नहीं, मेरा प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। तो लेकिन देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जरूर काफी आए हैं। ऐसा नहीं है कि टीम में आपस में झगड़ा हो गया, मैडम मैम तो नहीं बोलते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नाम ही लेते हैं सब लोगों का, तो वो जरूर हैंडल किए, कोशिश करते हैं। अगर नहीं भी कर पाई तो मैं डेफिनेटली अनुराग को किसी एक्सपर्ट से पूछ भेजूंगी और फिर हम लोग बात कर सकते हैं। बट लेट्स ट्राई टू डू अ रोल प्ले। तो मैं बनती हूँ स्टोर मैनेजर इधर, कोशिश करते हैं। एंड कौन कौन मतलब कौन झगड़ा करेगा वो देख लो आप लोगों में से। क्योंकि मैं शायद मेरा पर्सनालिटी वो नहीं है कि मैं वैसे बात कर पाऊँ, इसलिए तो मैम अब तो कोई भी नहीं आप बोलेगा। करिए। झगड़ा करेगा तो मस्ती झगड़े वाली हो नहीं, जाएगी। किसी को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम एंड चारू ने जो प्रॉब्लम पूछा है ना, वो कॉमन प्रॉब्लम है। बाय द यस वे मैं मैम एक्चुअली नैना को मैं भी बोल रही थी कि मैंने क्लियर, मतलब आई वाज एक्चुअली इंसिस्टिंग ऑन की प्रॉब्लम है और बार बार पोलाइटली बोल रही थी, पर बोल मैं भी रही थी बार बार, और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नाइसली बोल रही थी, प्यार से बोल रही थी। बस ये है कि थोड़ा एग्रेशन नहीं था। बट कोई तो होगा यार, कोई तो कर, निधि को मिलते होंगे जरूर कस्टमर यार ऐसे, निधि आप पर हैं मिलते हैं से कभी, बहुत तो आ जाओ फिर, चलिए फिर लेट्स निधि स्टार्ट। जी, आप ही करते हैं, आप बन चलो निधि। जाइए बदतमीज कस्टमर। ठीक है ना? आप लड़ाई करने के मूड में आई हैं आज। आपका मूड कर रहा है कि किसी एसी वाली जगह पे जाया जाए और अपने आप को कूल किया जाए, लेकिन गुस्से में हैं आप। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अरे मैम, आपके यहाँ से ये हम कल सिम ले गए थे और आपने पता नहीं कैसे दिया, रात भर में परेशान रही। आपने कहा तो 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों का पता नहीं क्या रहता है। नमस्ते निधि जी, आइए बैठिए आप। राजू, कैन यू प्लीज ब्रिंग अ वाटर फॉर मैडम? नहीं मैम, पानी यस आनी मैम। कुछ नहीं चाहिए। आप जो मेरी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कराइए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मेरा काम सारा रुक रहा है। आप लोग पता नहीं क्या करते हैं स्टोर में। हाँ हाँ निधि, आप चिंता मत कीजिए, अभी देखते हैं। आप बैठिए, बाहर बहुत गर्मी है, आप 5 मिनट आप बैठिए, 1 मिनट आप पहले बैठिए, थोड़ा सा सांस लीजिए, पानी पीजिए, मैं बात करती हूँ। आराम से हाँ मैम, देखते हैं बहुत आपका ज्यादा समय प्रॉब्लम। नहीं, और थोड़ा सा इसको जल्दी कराइए प्लीज। मैं इतना समय नहीं दे बिल्कुल, पाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप ही हो अभी, आप ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, हम आप ही का ख्याल रखते हैं, आप ही के लिए ही बैठे हैं निधि यहाँ पर, आप ही के लिए बैठे हैं, अभी देखते हैं। आप एक काम कीजिए, पहले मुझे आप फॉर्म छोड़िए, मैं लिखती हूँ आपका फॉर्म खुद ही, रुकिए। हाँ निधि, आप मुझे सिम दिखाइए, सिम नंबर मैं नोट खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, ओके। ये लीजिए सिम। हाँ हाँ, ये आप कब लेके गए थे निधि? ये तो आप 1 हफ्ते पहले लेके गए थे। 1 हफ्ते से मैम वो बोला जा रहा है। मैंने आपके नंबर पे कॉल भी करी, यहाँ पे जो आपका स्टाफ है उसका नंबर लेके गई थी मैं। और इसके बाद वो लोग बोल रहे हैं आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा। मैं क्या यही करता रहूंगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है? मैं सिम एक्टिवेट कराता रहूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और ये तो बहुत गलत है, एंड आई एम रियली 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 वेरी सॉरी फॉर दैट। दिस शुड हैव नॉट हैपन, नहीं ये होना नहीं चाहिए था, 1 हफ्ता तो इम्पॉसिबल है। ओके,
एक मिनट मेरे को देखने दीजिए। आप अपना फोन भी मुझे दिखाइए। ये वाले फोन में आपने कोई और दूसरा सिम कभी डाला है या ये नया नहीं इसी के मैम, लिए कोई खरीदा है सिम नहीं आपने? है इसमें। इसी यही के लिए वाला मैंने सिम के लिए खरीदा ना? था। जी जी। आप मुझे दिखाइए जरा फोन अपना। यार निधि जी, सिम आप तो तो बड़ी सही थोड़ा है। गुस्सा दिखाइए। हाँ, ये तो इतने आप तो प्यार से आ गई। मैं मैं वही सोची, मैं इतने प्यार एक्चुअली। मेरे अंदर रिलेशनशिप मैनेजर वाला ना बस में बन नहीं पा रहे। बट आई विल टेल यू वन थिंग, चारू हेयर एंड चारू एंड बाकी लोगों के लिए, निधि का गुस्सा दूसरी सेकंड, निधि वाज थोड़ा शुरू में अग्रेसिव थी। शुरू के 2 मिनट के बाद जब मैंने उसको बोला गर्मी आप बैठिए पानी पीजिए, आप ही प्रायोरिटी हैं, छोड़िए फॉर्म वॉर्म हम देखते हैं, शी ऑलरेडी काम डाउन एंड इट्स ओके। आई मीन शी इज डूइंग अ रोल प्ले। लेकिन नॉर्मली कोई कस्टमर आएगा ना, जब उसको समझ में आएगा कि यार लुक, कोई इंटेंशनली, मतलब मैं भी सामने बैठी हूँ, स्टोर मैनेजर अगर बैठी हूँ, मैं इंटेंशनली उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हूँ। उसको समझ में आएगा कि उसके साथ लोग बैठे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, और तो शायद शायद काम हो जाए। हो सकता है ना भी हो। वैसे लड़कियों को देख के नॉर्मली लोग काम हो ही जाते हैं। ये इंडिया में एक थोड़ा सा बेनिफिट है। आई मीन आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन, और थोड़ा हम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप उसके साथ कैसे बात करते हो, कैसे आप आई कांटेक्ट बनाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हैंडल और करते हो। अगर नहीं, और या अगर चारू। पहले से प्रिया प्रिया जी, आप किसी कस्टमर को हैंडल कर रही हैं और उसके बाद एक कस्टमर और है और ये तीसरा कस्टमर है कि जो कि गुस्से में आया है अंदर, तो आप अपने जिससे बात कर रहे हैं उसे तो छोड़ेंगे ही नहीं। ये तो होगा नहीं कि आप इसको चुप करा देंगे, चलो अब बैठो मैं जरा पहले उसे देखूं। वो थर्ड नंबर, तब तक तो वो शोर मचा देगा। फिर क्या टीम किया में, जाए? हाँ बिल्कुल, हाँ वहाँ प्रॉब्लम होगी, लेकिन यू नो व्हाट, वन बाय वन ही हैंडल करना पड़ेगा। स्टोर में एक ही लोग नहीं होते हैं, 2-3 लोग होते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी रश होता है। और यार पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे बदतमीज कस्टमर एक ही बार आ जाए तो थोड़ा सा हार्ड लक है, लेकिन हो सकता है। पर अपनी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि ये आज का ये मोमेंट है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है जब प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहने वाली है, और इसी को कहते हैं परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। अगर उस टाइम पे आपने अपना पेशेंस लूज कर दिया, आई विल टेल यू वन थिंग, जो आपने दो को अभी काम किया है ना, वो जो तीसरे इसके साथ आप तीसरे को जिस तरह से हैंडल करोगे, उसकी वजह से जो दो को आप काम कर रहे हो, वो भी अगर झगड़े में आ जाएंगे वापस। तो वो अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। आई नो कस्टमर हैंडलिंग इज नॉट इजी, ट्रस्ट मी। और सब तरह के लोग आएंगे, सब तरह के लोग आएंगे। बहुत प्रोफेशनल्स भी आएंगे, नॉर्मल वर्किंग क्लास भी आएंगे, कुछ लोग बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे मैडम प्लीज मुझे बता दो इस फोन में सिम कैसे डालना है, ऑन कैसे करना है, सिम फोन को चलाना कैसे है। वैसे लोग भी आएंगे। आपका काम क्या है कि आपको सबको एक तो इक्वली ट्रीट करना है। कि एक बहुत हाई प्रोफेशनल आया, आप उसको तो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, पर लेकिन एक लेट्स से एक बहुत अंडर प्रिविलेज्ड आया, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। वो नहीं करना है। सबको इक्वली ट्रीट करना है। ऑफ कोर्स इक्वली का मतलब ये नहीं है कि सबको एक तरीके से सबके साथ डील करना है। सबको डील करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि सब लोग आपसे अलग तरीके से बात करेंगे। पर इक्वल ट्रीट करना है कस्टमर को, बिकॉज वो आपके कस्टमर हैं एंड दे आर पेइंग फॉर द सर्विसेज, राइट? राइट। आई एम नॉट श्योर चारू मैंने उस क्वेश्चन का आंसर पूरा दिया या नहीं दिया, पर राइट वो बिल्कुल, सिचुएशन के बेसिस पर सिंपल पोलाइटनेस एंड पेशेंस, ईगरनेस टू हेल्प, कि मैं आपका क्योंकि हेल्प के लिए बैठी हूँ। राइट, मैंने देखा है ऐसा होते हुए कई बारी। स्टोर्स में जाते हैं जब, तो स्टोर भरा होता है लोगों से। इवन मैं भी कई बारी एज अ कस्टमर गई हूँ एयरटेल स्टोर पे, तो पेशेंस लूज कर देता है कस्टमर। वहां पे ऑलरेडी 3 एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, दे आर अटेंडिंग टू अदर्स, एंड जो अब आया है वो जल्दी में है या वो गुस्से में है, उसको वेट करना पड़ रहा है, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं कस्टमर्स। तो हर टाइप की सिचुएशन आएगी आप लोगों के सामने। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल देम कि सिचुएशंस आएगी, यू हैव टू बी ओपन, योर माइंड हैज टू बी ओपन कि आप सबको देखो, राइट मैम, क्योंकि एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट बिकॉज एवरी ही इज कस्टमर, वेटिंग दैट एग्जैक्टली। डजंट, you can't ignore anyone.
Any other Yes, questions you all have, please ask her. I don't want कि आप लोगों के दिमाग में या कहीं पे कुछ कोई query रह जाए. Please पूछिए आप. ठीक है, इनकी तो कोई Can I question say something, नहीं. ma'am? Anything else? yes, Yashi. Yes. जैसे कि मैम चारू मैम ने बोला कि एक साथ 3 कस्टमर आ जाएंगे, देन आप क्या करोगे? सो मेरे पास एक एग्जांपल है जो मैंने फेस किया था, तो कैन आई शेयर? Yes, yes. Yes. सो मेरे साथ भी एक सेम प्रॉब्लम हुई थी, हम इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं. सो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा भी एयरटेल का सिम था एंड मैंने एक्चुअली आइडिया का सिम था, मैंने उसको पोर्ट कराया था एयरटेल में एंड वो वर्क नहीं कर रहा था. नेक्स्ट डे हम लोग स्टोर पर गए, देन मुझे काफी गुस्सा भी था उस चीज का. तो जब मैंने मैनेजर से बात किया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत पोलाइटली बात किया एंड फिर किसी और को हैंड ओवर कर दिया जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. एंड उसके बाद ही 1-2 कस्टमर और आए, देन उन्होंने फिर उनको हैंडल किया. तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे कोई सॉरी अगर कोई कस्टमर बदतमीज आता है या कोई मतलब बहुत गुस्से में आता है, तो आप उसको हैंडल करते हो, देन 2 मिनट के बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है. कुछ ना कुछ वे तो मिल जाता है कि भाई क्या हो सकता है पॉसिबल वे, एंड आप किसी टीम मेंबर को फिर वो चीज हैंड ओवर कर देते हो कि प्लीज इसको सॉर्ट आउट कर दो, देन आप नेक्स्ट कस्टमर पे जा सकते हो. सो मेरा ये थॉट था जो मैंने शेयर किया. थैंक यू. Very well said. Yes, right. Thank you, Yashi, for sharing it. जी. Actually होता यही है मैम कि आई थिंक ऐसी सिचुएशन में एक तो आपने हमें अपने एक्सपीरियंसेस याद करने चाहिए एक्सट्रीम में कि हम कौन से स्टोर में गए थे, हमें बहुत अच्छी फीलिंग हुई थी, और कौन से ऐसे स्टोर में गए थे जहाँ पे हमें बहुत वर्स्ट फीलिंग हुई थी. तो वी शुड ऑलवेज डू व्हाट वी फील कि अच्छा था. ऐसा ही हमें भी अपने कस्टमर्स को फील कराना है, राइट? यस. Right? कोई बीच में कुछ किसी ने बोला था. हाँ, निधि वाज सेइंग. जी मैम, ऐसी सिचुएशन में जो 2-3 कस्टमर वाली बात हुई है, ऐसी सिचुएशन में आई थिंक टीम वर्क ही काम आता है कि अपनी टीम, आपकी जो टीम होगी उनको भी आप जो है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताएं, ताकि आप ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो एज अ टीम आप उसको हैंडल कर सकें. Right. Guidance to your team and the counseling of them is very important. Continuous अपनी टीम के साथ इंटरेक्शन करना उनको प्रिपेयर करेगा इस सिचुएशन के लिए. वेरी वेल सेड निधि. चले आगे. बाकी हाँ, बाकी या लोग भी जितने, please turn on your cameras and be more interactive. That will help you in future in your jobs actually. So I think मैम कहीं आपने पे एक 14 बार जने बोला हैं. था, मैंने ऑफ ही नहीं किया We कैमरा are तब से. हम 13 जने हैं इस मीटिंग में, सिर्फ 5 कैमरास ऑन है. 5 कैमरास, 6 कैमरास ऑन है. तो लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए. मैंने एक बार अभी पिंग भी करा था. Any question all of you have, you can ask. That's it. बाकी सब शाय है. इट्स फाइन एक्चुअली. सो हम लोग को जैसे काफी टाइम से हम लोग घर से काम कर रहे हैं, तो हम लोग की टीम में भी हम लोग मीटिंग्स करते हैं, तो कैमरे से ही करते हैं, वीडियो मीटिंग्स ही चलती हैं आजकल. वहाँ भी काफी लोग नहीं ऑन करते हैं, जबकि हम लोग सबको पर्सनली जानते हैं. तो इट्स ओके. आई मीन इट्स एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग द कैमरास, द बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग. इट्स फाइन आई थिंक. बट अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो, लेकिन बोलो, कोई यहाँ आपको जज नहीं कर रहा है, आपको ही को हेल्प होगा. कल को आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दिस इज कंसिडर दिस एज योर अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट. आई वुड से एक स्टार्ट करने Yes, का ma'am. मंच. ओके. Yes, ma'am. Anyways, we don't have much more now. 2 more slides, and we already talked about it. But I will
Anyways, talk about it. Be clear and concise, to the point. वर्बोज नहीं होना है. अगर कोई बात बोलनी है, घुमा घुमा के एक ही बात को 4 बार बोलना, नो नीड. छोटे वर्ड्स में, शॉर्ट पैराग्राफ्स में टॉक अबाउट इट, पीपल विल लव. प्रैक्टिस एम्पैथी. मैं एम्पैथी का एक एग्जांपल दूंगी. एम्पैथी को जस्ट कीप इट असाइड. आई एम श्योर मे बी ये वर्ड आप लोगों के लिए शायद नया हो, बिकॉज सिंपैथी से राइम करता है, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी है. मैं इसके बारे में बात करती हूँ अभी. assert yourself. So assert means keeping अपना पॉइंट बोलना और क्लियरली बोलना. assert का एग्जांपल देती हूँ. मैं एसर्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. असर्टिवनेस इज ऑल्सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है. एक्चुअली सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ही पार्ट है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है. आपसे किसी ने 500 रुपए उधार लिए, ठीक है, अब दे दिए. अभी मुझे वापस वो महीना हो गया, वो बंदे से मेरी बात हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन वो मेरे 500 उसने मुझे कहा था मैं 2 दिन में लौटा दूंगा या लौटा दूंगी. अभी तक नहीं लौटाई, महीना हो गया. राइट. मी बीइंग शाय कि मैं पूछूं, मेरा रिलेशन तो नहीं बिगड़ जाएगा उससे, उसको कैसा लगेगा मैंने उसे पैसे दिए थे वापस मांग रही हूँ. राइट. हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं. व्हाट इज असर्टिवनेस हियर इज आस्किंग हिम नाइसली कि मैं निधि का नाम नहीं लूंगी, निधि का ये मेरे ही पीछे पड़ गए हो. नैना, नैना आपने पिछले हफ्ते मुझसे लास्ट मंथ आपने मुझसे 500 रुपए लिए थे. मे बी आप भूल गए होंगे. आपको क्या आपको याद है आप कब तक आप लौटा पाओगे? Okay. सिंपल लाइन. Yes, I guess, क्या yeah, मैंने yeah, simple है. क्या नैना आपको बुरा लगा मैंने आपसे ये पूछा? No, 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 ma'am. राइट. This is सिंपल. simple, लेकिन very हम लोग इतना ज्यादा अपने आप में ही वो सोचते रहते हैं ना कि क्या करें, पूछे नहीं पूछे, नहीं, क्योंकि शायनेस कि पैसे के सामने वाले को कारण बुरा लगे. ये सिर्फ पैसे वाली बात नहीं है. मैं और एग्जांपल देती हूँ. कुछ आई बिलीव सम ऑफ अस आर मैरिड. आई एम मैरिड एट लीस्ट. आपकी फैमिली में लेट्स से आई मीन मदर इन लॉ का एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि चल, आई मीन शी इज अ वेरी नाइस लेडी बाय द वे, कि उन्होंने मुझे कहा, एंड शी इज फ्रॉम कानपुर, तो कि प्रिया बेटा चलो जरा आज घूम, उनके यहाँ जाना है रिलेशन में, और बहुत जरूरी है. एंड मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है. अब मेरे पास दो ही चीजें हैं, या तो मैं ऑफिस का काम सफर करूं, या खुद को सफर करूं, रात में बैठूं और कॉन्टिन्यूसली करूं काम, और उनके साथ जाऊं. राइट. दूसरा, और दूसरा ये कि उनके साथ जाऊं. तीसरा एक और है कि मैं उनसे पूछूं कि वहां जाना कितना इंपॉर्टेंट है. फिर उनको बताऊं कि देखिए मेरे पास ये काम है, मैं शाम को जा सकती हूँ, या हम लोग कल या परसों जा सकते हैं, या अगले हफ्ते जा सकते हैं. राइट. पर मैं अपने ही माइंड में उस बात को समझा के बैठी रहूं, अपने माइंड में लेके बैठी रहूं, और मैं बोलूं ही ना वो बात. एक तो मैं अपने लिए बिना बात का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ, एंड रिलेशंस खराब कर रहे हैं. राइट. जैसे पहले वाला एग्जाम्पल है नैना, मेरे माइंड में हमेशा रहेगा नैना ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, और नैना को याद भी नहीं है, लेट्स से कि नैना को याद भी नहीं है कि उसने मुझसे पैसे लिए थे. राइट. सो Yes, ma'am. दैट इज वेयर योर assertive skills plays a big role. बिल्कुल. आप अपना पॉइंट रखो, पोलाइटली रखो, राइट पॉइंट रखो. आपको कुछ इधर उधर नहीं करना है, हम उसको ऐसे गलत, मतलब गलत पिक्चर नहीं करना. सिंपल जो है वो बोलो, और अच्छे से बोलो. अगर आप लोगों का ऐसा रिलेशन, एंड आई टेल यू, इफ समवन फील्स बैड अबाउट इट, देन यू डोंट शेयर अ गुड रिलेशन विद दैट पर्सन इज रियली नॉट वर्दी ऑफ योर रिलेशन, अगर आप assertively उसको ये बात बोल रहे हो तो. Okay, let's go back. We are anyways short of time. Be calm and consistent. We talk about it. Use and read body language. इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है. राइट. मैं एम्पैथी का एग्जांपल सबसे लास्ट में देती हूँ. छोटा सा एग्जांपल है, बट आई रियली वांट टू कवर द लास्ट स्लाइड फर्स्ट, एंड देन मे बी वी विल टॉक, and we'll ask Charu if we can extend it by 5 more minutes or no. Okay. Have a strong communication plan. किसी से बात करनी है, डिपेंडिंग ऑन क्या एजेंडा है, उसका एक प्लान क्रिएट करो. अगर गिव अ फीडबैक,
ये स्पेशली आपके एम्प्लॉयज के लिए है जो आपके साथ हैं टीम में। उनको बताओ कि ये आपने किया, ये सही था, ये गलत था। असर्टिवली डोंट पिन पॉइंट कि तूने ये किया, गलत किया, ऐसे करेगा तो ये होगा वो होगा, नहीं। विद एन इम्प्रूवमेंट कि ये आपने ऐसे किया, ऐसे करते तो अच्छा रहता, आपको आगे हेल्प होगी, सो दैट सामने वाले को लगे कि उसका ही इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू एंड वो आप ही विल लुक अपॉन टू यू, वो आपको देखे, आपसे कुछ सीखे। ओके, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस कि किसके साथ आपको बात करनी है, वो आपको समझता है, उसको पहले समझो कि वो किस लैंग्वेज में समझेगा, किस तरह से समझेगा, क्या लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। आपका कस्टमर आया, आप उसको बता रहे हो सिम एक्टिवेट नेटवर्क पे कैसे होता है, आपकी क्वेरी कैसे रेज होती है, कहाँ जाती है, अप्रूव होती है, क्या होता है, उसे क्या लेना देना, नहीं ना। लेकिन आपकी टीम को ये बात पता होनी चाहिए। जब आप अपनी टीम को बता रहे हो तो आपको ये बात बतानी है, किसको क्या बताना है, कितने लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन देना है, वो आपको देखना है। बी कंसिस्टेंट, लिसन एक्टिवली, क्या नहीं करना है, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। कि भैया टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन लाइक कि मैंने ये फॉर्म बना दिया, ये फॉर्म बना है, इसी फॉर्म के बारे में बात करनी है, कोई उसके आगे पीछे पूछे तो नहीं बात कर पाएंगे। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, वी टॉक्ड अबाउट इट, आई थिंक जब हमने बात किया था कि व्हेन योर फेस इज स्माइलिंग बट योर आईज आर एंग्री, और योर आईज आर स्माइलिंग बट योर फेस इज like this. So overshare, we talked about it. Be afraid to ask question. क्वेश्चन पूछो आराम से, और पूछो, क्वेश्चंस पूछोगे तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस यू विल एक्चुअली डीप डाइव इनटू द प्रॉब्लम, यू विल रीच टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। एक साइड कॉन्वर्सेशन नहीं करना है कि बोलते जाओ, सामने वाले को सुनना ही नहीं है। सामने वाले को सुनना है, अपनी बोलनी है, उसकी समझनी है, अपनी समझानी है। Charu, how much time do we have now? Ma'am, we can have 5 or 10 minutes more, ma'am. We can five more minutes. I just wanted to give the example of empathy to all, क्योंकि वो एक Yep. नया वर्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और दो वर्ड्स होते हैं, एक सिंपैथी होता है और एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी इज लाइक कि यू फील सॉरी अबाउट समवन, लाइक ओहो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ। We are not talking about that. In workplace, we talk about empathy. और एम्पैथी का बहुत ही अलग एग्जाम्पल देती हूँ तुमको, क्योंकि ये मैंने भी एग्जाम्पल सुना था एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज आई कांट रिलेट टू इट एंड मोस्ट ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू रिलेट इट टू इट। एम्पैथी इज लाइक आपका कोई टीम मेंबर आया, उसने कल छुट्टी लिया, और कोई घर में बीमार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसने आपको रीजन क्या दिया कि मेरे घर में मेरा पेट है, वो बीमार है। पेट डॉग हो सकता है, लेट्स से डॉग, माय डॉग वाज इल मी, या माय डॉग वाज नॉट, मेरा डॉग अच्छे मूड में नहीं था, ही वाज नॉट लेटिंग मी लीव ऑफिस, घर से जाने नहीं दे रहा था। जिन लोगों के पास पेट नहीं है वो इस बात से रिलेट नहीं कर सकते, उनको नहीं समझ में आएगा, मैं भी नहीं समझ पाऊंगी बाय द वे इस बात को, क्योंकि मेरे पास भी पेट नहीं है। मुझे उन लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी कि व्हाट दैट अटैचमेंट इज। जो अटैचमेंट्स आप लोगों का अपने किड्स के साथ होता है, हम लोगों का अपने किड्स के साथ होता है, वही अटैचमेंट जो लोग पेट पालते हैं उनका अपने पेट्स के साथ होता है। सो हियर यू डोंट नीड टू सिंपैथाइज टू दैट पर्सन, यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन प्रॉब्लम कि हाँ he was in a problem yesterday, उस प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाया। वो प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हो सकता ना हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम थी, right? That is what empathy is. You put yourself in someone else's shoes, किसी और की जगह पे अपने आप को रखो और समझो कि वहां पर क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम था उस टाइम पर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। That is what empathy is. So that's what last thing I wanted to talk about. Now we have a forum open for all of you to ask your questions. जो मन में आता है, जिस तरह का क्वेश्चन आता है, relevant, irrelevant, don't worry, just ask. आप टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी पूछिए।
हाँ अनुराग हम लोग सिर्फ 5 मिनट और एक्सटेंड करेंगे। हमने बहुत काफी बात कर लिया वैसे, नहीं पर कोई इशू 5 मिनट नहीं। और। हाँ, किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो और कुछ थॉट्स लेने हो, अपने थॉट्स शेयर करने हो, अपने एग्जांपल्स अपनी पर्सनल लाइफ से, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से कुछ शेयर करना हो तो लेट्स टॉक अबाउट। मैं चुप रहूंगी, हाँ, मैं सिर्फ सुनूंगी। Ma'am, actually, I want to ask one question. अच्छा, Like, अभी तो ये बात हो रही है कि कस्टमर एग्रेसिव आ जाएगा तो कैसे डील करना है। बट समटाइम्स हमारा भी दिमाग नहीं सही होता है, हम भी अपने घर से निकले हैं काम करने, हम भी एग्रेसिव है, घर में कुछ हुआ है, हस्बैंड से लड़ाई हुई है, बच्चा परेशान है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? लाइक कामली ही काम कर सकते हैं, हर टाइम हम काम नहीं रह सकते, मे बी हम नहीं रह पा रहे हो, देन व्हाट शुड वी डू? कंट्रोल योर इमोशंस, ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। I'll tell you, आप लीडर हो, अपने स्टोर के मैनेजर हो, जो आप करोगे यस मैम। वही आपके टीम मेंबर करेंगे। आज आपका मूड खराब है, कल किसी और का होगा। कोई एक ऐसा दिन आया जिस दिन सबका मूड खराब होगा, आपकी स्टोर कैसे चलेगी? कैसे मैनेज होगा? एग्जैक्टली। जो आप करोगे वही आपके सबॉर्डिनेट्स करेंगे। कंट्रोल योर इमोशन, नॉट इजी, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, कम्स विद एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करना पड़ेगा, लेकिन nothing, no other way. I know No, emotions there are is no hard to choice. deal with. There is, Yes ma'am. and that's the right thing to do also. वो ही सही है। Exactly. Okay, yes ma'am. मुझे मालूम है इजी है लेक्चर देना, प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं मैम, इजी लेकिन नहीं, वही नहीं है। लेकिन हाँ। वही करना ही है, वही है, उसके अलावा नहीं है कुछ। मतलब इसमें बस मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, भाभी की अनुमति हो तो। और yours? मतलब भाभी ने वैसे तो जवाब दे दिया है। जस्ट वन थिंग, सी व्हेन यू आर, इट्स नॉट जस्ट कि आप कहीं के किसी स्टोर में हो, बट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। सो आप जिस चेयर पर हो पहले आप वो हो, आपका इंडिविजुअल सेल्फ बाद में आता है। पहले यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो आपके इमोशंस और सारी चीजें, ऑल दैट कम्स लास्ट। पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है और आपके उस संगठन की जो प्राथमिकताएं हैं, उस संगठन की जो प्रायोरिटीज है, वो पहले आती है। तो दैट्स वन थिंग। यस। Any more thoughts? और पूछिए पूछिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैम ने समझाया कि किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं बाकी रहा। You यार एक बार told सब them लोगों को everything. देख सबसे सकते ज्यादा हैं। मैंने पूछे हैं क्वेश्चंस, मैम ने बहुत एक्सपीरियंस, क्लियरली अपने समझाया थॉट्स शेयर किए। नहीं है। एक एक करके बोले कृपया। जी कोई बोलिए, याशी जी बोलिए आप। मैंने कहा मैम सबसे ज्यादा मैंने ही अपने थॉट्स शेयर किए हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। सो अभी जैसे सर बोल रहे थे कि सबसे पहले आपको जहाँ आप वर्क कर रहे हो वो प्रायोरिटी है आपके लिए, तो मैंने कहा इसका एक एग्जांपल याद आया मुझे। मैंने एक मूवी देखी थी, मेरा नाम जोकर। सो उसमें आई थिंक उसकी कोई डेथ हो जाती है उसमें, एंड उसको परफॉर्म करना होता है स्टेज पे। तो वो अपने इमोशंस एंड सारी चीजें एक साइड करके वहां परफॉर्म करता है। सो ये हमारे लिए एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें। राइट, राइट। इट टाइम के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा। आपको जी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये। यस मैम। और ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी है। हर जगह आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओह, वेयर डिड निधि ठीक है। वेंट? ओह, ये आप बहुत आई याद गॉट कर रही थी निधि को, होगा। वो चली गई। निधि, नैना, हाय तान्या, हाय। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? Nothing, ma'am. कुछ Everything is solved. बढ़िया? आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर Got it. दी है। गुड।
Charu, anything else, or shall we conclude now? Let's conclude, ma'am. So I would like to thank you, ma'am, for giving us an insight into our future job in the Airtel showroom as a store manager. And hope you all have understood your roles and responsibilities in the management of an Airtel store. I also hope that now you have all your queries. All the best for your future jobs. And thank you once again, ma'am. Thank you so much. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you, Thank you, everyone. ma'am. You all Thank you, have Charu. been a wonderful Thank you, participant. ma'am. Anurag, thank you very much for giving this platform for me to interact with these lovely ladies. नहीं नहीं पहले तो भाभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला My और honor. ये सब लोग भी जो है मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर देम आई एंड वी आर जस्ट अ मीडियम हम उन्हें बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इट्स नॉट जस्ट दिस अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये तो मतलब आपको अब एक अपॉर्चुनिटी अभी बताई गई है इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी ये एक आपका एक छोटा सा भाभी ने जो आपको दिया मतलब अपना इतना समय निकाल करके और इतना इतना कुछ उन्होंने इतने समय में बताया तो ये बस शुरुआत है और आगे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं तो थैंक यू भाभी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम Thank you all and all the very best. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am, Hello. Bye, ma'am. for giving me your precious time.